Yes. Good morning, students. All of you, good morning. Good morning. How are you? Fine. ठीक है. We have read in previous class that about the indefinite articles, and our indefinite articles are going on, and we are completed rule 5. Next rule is rule number 6. Rule number 6 is indefinite article is used before two nouns or two adjectives. Indefinite article is used before two nouns or two adjectives, and they connect with and. Two nouns and two adjectives are connect with and before these nouns indefinite articles use a or an. Next, एग्जाम्पल्स. आपको इस चीज़ से एग्जाम्पल से क्लियर होगी इस चीज़ को कि दो नाउन या दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनसे पहले फर्स्ट नाउन के पहले आइदर बोथ नाउन के पहले आर्टिकल आता है. वो क्यों आता है आप ये देखिए. ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. In these sentences there are the two fill in the blanks here. One is starting fill in the blanks of this line, and next fill in the blanks is after the end. It means in this sentences there are the two nouns or two adjectives. So it is one adjective and another adjective. Black and white are adjectives, and the before the adjectives places of the fill in the blanks, and they are connect with and. In the question options maybe A cross A, the cross और A. इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं इनमें कि पहले में A आएगा, बाद वाले में नो आर्टिकल होगा, दोनों में A होगा, इन ऑप्शंस में अकॉर्डिंग. तो देखिए, तो दिस वी डिसाइड द आर्टिकल्स. It is depend on the helping verb. If the verb is singular, then only one article is used before the first noun or first adjective. It means A article is used before first, and next zero article. There is no article of that. Same thing is the next sentence. Poet and teacher. Poet is noun and teacher is noun. Poet and teacher both are nouns connect with and the next sentence verb is singular. The poet and teacher is teaching in the class. Poet and teacher is teaching in the class. So again the same rule applicable for here in this sentence. The is singular verb. So again the first A article is used before first noun and second cross. Next, poet and teacher. Poet and teacher are teaching in the class. Poet and teacher are teaching in the class. Helping verb plural verb है, और being a plural verb it means there are two uses of articles. A poet and a teacher. A poet and a teacher. When the singular verb is used, our option is this one, and if the plural verb is used in the sentence, then A option number
बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बोथ आर ए. A poet and a teacher are teaching in the class. Next sentence, teacher and principal. Teacher and principal are plural verb है. Sitting in the class. Teacher and principal are sitting in the class. अभी sentence complete नहीं हुआ है. Who are my friends? Who are my friends? अब क्या होगा देखिए, one thing is that our verb is plural. Our verb is plural. It means it is done, it is confirmed that कि यहाँ both articles use होगा, दोनों में article use होगा, और दोनों में article use होगा, बट ऑप्शन हमारे पास A का भी होता है, N का भी होता है, D का भी होता है. तो विच ऑप्शन इज एप्लीकेबल फॉर हियर? सूटेबल आर्टिकल. तो सूटेबल आर्टिकल के लिए हम यहाँ देखेंगे कि हु आर माई फ्रेंड्स, हमने इनको डेफिनेट बना दिया कि जो टीचर और जो प्रिंसिपल सिटिंग इन द ऑफिस, इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, वही मेरे दोस्त हैं, कोई दूसरे वाले दोस्त नहीं हैं, मेरे दोस्त वही हैं जो इस रूम में बैठे हैं. कौन है वो? टीचर और प्रिंसिपल. तो यहाँ अकॉर्डिंग आर्टिकल द आर्टिकल यूज होगा. अब देखिए, आर्टिकल ए का भी यूज पॉसिबल है, आर्टिकल दी का भी पॉसिबल यूज है, बट नाउन क्वालिफाइड या डिफाइन होना चाहिए. नाउन हमारा उनके बाद में डिफाइन होना चाहिए. आगे रूल में आएगा कि हमने इसको कैसे डिफाइन किया. तो डिफाइन होना चाहिए कि पर्टिकुलर वही पर्सन की बात हो रही है, अनदर पर्सन की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये कॉमन नाउन है. टीचर भी बहुत हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उन्हीं टीचर और प्रिंसिपल की बात हो रही है जो मेरे फ्रेंड्स हैं. तो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल होगा, इधर इनडेफिनेट आर्टिकल होगा, क्योंकि इनको हमने डिफाइन नहीं किया है. और ए क्रॉस और इन सेंटेंस में ए का यूज हुआ है. तो स्टूडेंट आप लोग ऐसे रट मत लेना कि प्लूरल वर्ब देखा तो दोनों में आर्टिकल होगा और सिंगुलर वर्ब होगी तो एक आर्टिकल लेगा. इसको अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करें. आप इसको कैसे समझेंगे? ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज, इफ द सिंगुलर वर्ब इज यूज, इट मीन्स ओनली वन पर्सन आर देयर. Only one person are there. It means black and white cow is one cow only, and that cow is both colors. Black and white color है, काऊ कितनी है? एक काऊ है, और एक काऊ के लिए यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट यूज़ किया है हमने, और ब्लैक एंड वाइट एक ही काऊ के लिए दोनों एडजेक्टिव यूज हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही एडजेक्टिव का यूज़ किया है. नेक्स्ट देखिए, पोइट एंड टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. जो पर्सन इस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो टीचर भी हैं और पोइट भी है. द बोथ क्वालिटी इन ए सिंगल पर्सन. देयर आर द नो टू डिफरेंट पर्सन्स. दो व्यक्ति नहीं हैं और दो पर्सन नहीं हैं. बीइंग क्वालिटी, जो टीचर है वही पोइट है. वही क्या है? पोइट है. और एक पर्सन पोइट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है. एक ही पर्सन प्रिंसिपल भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है. एक ही पर्सन ड्राइवर भी हो सकता है, पियोन भी हो सकता है. तो क्वालिटी होती है उनके अंदर. तो ए पोइट एंड टीचर इज सिंगुलर वर्ब इज यूज, सो ओनली वन आर्टिकल इज यूज हियर. तो ए पोइट एंड टीचर इज टीचिंग इन द क्लास. नेक्स्ट, ए पोइट एंड ए टीचर आर टीचिंग इन द क्लास. हमने कह दिया कि ए पोइट, एक पोइट, एंड वन टीचर, ए टीचर आर टीचिंग इन द क्लास. अब पर्सन कितने हो गए बताओ? 2. यस, करेक्ट आंसर. 2 पर्सन हो गए, और 2 पर्सन होने के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी? प्लूरल वर्ब लगी. पर्सन कितने हुए? प्लूरल हुए. और प्लूरल होने के लिए आर्टिकल भी कितना लगेगा? दोनों के पहले इसका आर्टिकल का यूज होगा. सेम थिंग इज दैट द एंड द. The teacher and the principal are teaching in the office. Who are my friends? Who are my friends? So the teacher and the principal are teaching in this office. Who are my friends? तो इसमें ऑप्शन हमारे होगा the. देखिए, कभी भी
ये ऑप्शन नहीं होगा। नाउन हमने उसको पूरा नाउन फ्रेज बनाया है, और नाउन वर्ब के पहले पहले पूरा नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज में वो कंप्लीट है, या तो पूरा डेफिनेट होगा या पूरा इनडेफिनेट होगा। एक में द और एक में ए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, या तो दोनों में दी आएगा या दोनों में ए आएगा। व्हेन इन केस द प्लूरल वर्ब इज यूज आर देयर। तो देखिए, यस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमने इसको डिफाइन किया है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। वन आर्टिकल इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, टू आर्टिकल इक्वल टू प्लूरल वर्ब। ऐसा यहाँ इसलिए नोट किए हैं, आप भी इसको नोट करना। ये इसलिए नोट किया है कि पेपर में, एग्जाम्स में इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है। टू आर्टिकल इज गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक इज हियर, कि इज एम आर वाज वर्ब में से यहाँ क्या होगा। तो जब आप देखेंगे कि ए और ए देर आर द टू आर्टिकल्स, इट मीन्स 100% ऑफ द प्लूरल वर्ब। यहाँ वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। इधर देखिए, यहाँ बनाते हैं कि इज एम आर वर हैव, तो ये हमारी वर्ब दी हमने। अब इज एम आर फॉर यू ऑप्शन होते हैं, तो हमने फॉर यू ऑप्शन बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए पोइट एंड टीचर, आर्टिकल कितना आ रहा है? वन आर्टिकल आ रहे हैं, और वन आर्टिकल आ रहे हैं इसलिए देखिए एम आई के साथ नहीं होगा, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, बचा तो इज बचा, इसलिए यहाँ किसका यूज होगा? इज का। ये नोट इसलिए किया है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स या कई एग्जाम्स में इनको उल्टा पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया, दूसरे क्वेश्चन को घुमा के उधर से दे दिया। वर्ब का नॉलेज है तो आर्टिकल फिलअप कर दोगे, आर्टिकल का फिलअप है तो वर्ब का, एक दूसरे से दोनों डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिफरेंट बिटवीन ए एंड एन। कई जगह हमने अभी तक आर्टिकल ए और एन पढ़ा है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज, इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज। अब देखिए, डिफरेंट बिटवीन ए एंड एन, ए एंड एंड का यूज। तो एन इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन बिगिनिंग विथ वॉवल साउंड, बिगिनिंग विथ वॉवल साउंड। नेक्स्ट, ए इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान दें इस वर्ड पर, साउंड पर। बात हमारी वॉवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर पे बात नहीं हो रही है, बात किस चीज़ पे हो रही है? बात हम कर रहे हैं कि साउंड पे, कि बिगिनिंग विथ वॉवल साउंड और बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। तो ए इज यूज्ड बिफोर, देखिए ए का यूज हो या एन का यूज हो, सिंगुलर होगा, कॉमन होगा, नाउन होगा। डिफरेंट क्या है? बिगिनिंग विथ वॉवल साउंड है तो एन होगा, और बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ ए का यूज होगा, है ना। ए आई ओ यू लेटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट लेटर, या हम बात कर रहे हैं साउंड की, तो ध्वनि, क्योंकि लेटर साइलेंट वर्ड्स होते हैं, म्यूट वर्ड्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे। इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes students, our continue the next screen. On the next screen we are discussing about the difference between A and N. A and N. A and N. In the previous screen we have written the rule that N is used before singular common countable noun with beginning with vowel sound, and A is used before singular common noun beginning with consonant noun, तो A और N it depend on consonant sound and vowel sounds,
वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, न कि लेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ए आई यू हमारे भले ही वोवल हो, लेकिन हम इन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये होगा साउंड के ऊपर होगा। हमने रूल पहले पढ़ चुके हैं, इसका एग्जाम्पल्स देखिए। इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। हम डिफरेंस बात कर रहे हैं ए और एन की। आपके ऑप्शन आएगा ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट में ए होगा या एन होगा? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन मस्ट दिस इज नॉट नाउन, दिस इज एडजेक्टिव। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के कारण यहाँ कोई आर्टिकल का ही यूज़ नहीं होगा। इफ़ यहाँ अगर ऑनेस्ट के बाद में पर्सन, मैन, बॉय, गर्ल कुछ होता, बॉय होता, ही है तो बॉय अगर होता तो यहाँ फिर किसका यूज़ होता? यहाँ एन का यूज़ होता। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, एच साउंड इज साइलेंट, मतलब म्यूट, म्यूट है। और द प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग बिगिनिंग विथ वॉवल साउंड, बिगिनिंग विथ vowel sound, or being a vowel sound, according to the vowel sound an article is used, an article is used. I did this work an hour ago. मैंने ये वर्क किया कितनी देर पहले किया? an hour ago। भले ही यहाँ पर h है लेकिन h म्यूट है, साइलेंट वर्ड है, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवल साउंड है, और वॉवल साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज़ हो रहा है? एन का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, ही हैज़ एन एम ए डिग्री। उसके पास एक एम ए की डिग्री है, एक एम ए की डिग्री है, यानी कि उसके पास 2 एम ए नहीं किया उसने, एन एम ए डिग्री। तो एम ए का जो है हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन होंगे एम, तो एम का जो ए है ये साउंड दे रहा है वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज़ होगा? एन का यूज़ होगा। नंबर 5, आई हैव एन अम्ब्रेला। आई हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में देखिए लेटर वॉवल है, साउंड भी वॉवल है, इसलिए हमने यहाँ किसका यूज किया? एन का यूज किया। ही इज एन इंडियन पर्सन। ही इज एन इंडियन पर्सन, और इंडियन पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ? एन आया। डेट इज ए यूनिवर्सिटी। हम कहते हैं कि डेट इज ए यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जो लेटर है वो लेटर आ रहा है वॉवल लेटर। वॉवल लेटर का यूज हुआ है, और वॉवल लेटर है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो साउंड है, ध्वनि, वो है वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल लेटर है, फिर भी इसकी साउंड किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है? ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रिटन में भले यू आ रहा हो, लेकिन जब हम हिंदी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यू का काम ये जो है, ये वर्णमाला के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग ए का यूज होगा। नेक्स्ट, सी हैज़ ए 1 रुपी नोट। सी हैज़ ए 1 रुपी नोट नाउन है, और यहाँ पे देखिए वन जो है ए आई ओ यू, लेटर कौन सा है? वॉवल है। साउंड कैसी है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ किसका यूज हुआ? ए का यूज हुआ। नेक्स्ट, ही पास्ड दिस क्लास। ही पास्ड दिस क्लास ए ईयर अगो। ए ईयर अगो। अब ए ईयर अगो में देखिए, ही पास्ड दिस क्लास ए ईयर अगो। अब ईयर में है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर पीपल दे स्पीक ईयर। ईयर बोलते हैं इसको, कि 1 ईयर 2 ईयर, ये ईयर नहीं होता है। ईयर, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है ईयर होगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये ईयर, और ये ईयर प्रोनाउंसिएशन यानी कि इसकी जो साउंड है वो कैसे साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और लेटर भी कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा? ए का होगा, ए का साउंड होगा। तो जो ए आर्टिकल यूज हुआ है, ए आर्टिकल ईयर का कॉन्सोनेंट साउंड के यूज हुआ है,
वैसे वाई है, इसको हम सेमी वोवल्स के यूज़ में जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे जब देखेंगे, लेकिन इसका अब ए का यूज़ होगा क्योंकि ईयर, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये ईयर होगा। फिर रूल नंबर 7, मोस्ट इज यूज इन सेंस ऑफ वेरी। मोस्ट का सेंस किस अर्थ में हो, वेरी के अर्थ में हो, तो देन आर्टिकल ए इज यूज बिफोर मोस्ट। जब भी आप मोस्ट का यूज़ करेंगे उस मोस्ट से पहले आप आर्टिकल यूज़ करते हैं तो आर्टिकल ए का यूज़ होगा। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम देखते हैं। ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब हमने जब पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो उसमें एक बार पोजीशन हम देखते हैं। बॉय नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, मोस्ट यहाँ एडवर्ब है, मोस्ट यहाँ एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्लेस यही है और यहाँ आर्टिकल किसका यूज़ होगा, आर्टिकल ए का यूज़ होगा। आर्टिकल किसका यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। तो मोस्ट इन सेंस ऑफ वेरी, वेरी के अर्थ में यदि मोस्ट का यूज़ होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ होगा। फिर देखिए, रमेश इज ए मोस्ट पावरफुल पर्सन। रमेश इज ए मोस्ट पावरफुल पर्सन नाउन, पावरफुल एडजेक्टिव, मोस्ट एडवर्ब और यहाँ आर्टिकल किसका यूज़ हुआ, ए का आर्टिकल का यूज़ हुआ। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि सर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी का यूज़ होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि इसमें विदाउट लिमिट है, लिमिट नहीं है, और जब लिमिट नहीं है तो विदाउट लिमिट दिस मोस्ट वर्क इज एडवर्ब, एज एन एडवर्ब। देखिए, इट इज़ विदाउट लिमिट, ये विदाउट लिमिट है। लिमिट कैसे, लिमिट ऐसे, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस स्कूल। हमने एक लिमिट दे दी कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है और कहाँ का है, ये स्कूल के हैं, तो इस स्कूल का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का जो है वो वह है। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्क कर रहा है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट यूज हुआ और यहाँ किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। हम हर चीज़ एक्सेप्शंस भी साथ साथ लेते हैं कि कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि सर हमको मोस्ट पे मोस्ट अगर दिख जाएं तो हमको ए का यूज़ करना है या द का यूज़ करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि और आपको ये भी कंफ्यूज मत होना कि कब ये एडवर्ब होता है, कब ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव तब होगा जब इसके साथ लिमिट होगी तो ये सुपरलेटिव डिग्री का काम करेगा, और विदाउट लिमिट अगर इसका यूज़ होता है तो ये एडवर्ब होगा और एडवर्ब के पहले आर्टिकल अपना ए का यूज़ होता है। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले वाली जो क्लास है इसके साथ में ही मैं अपलोड करूँगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी रूल नंबर 6 वाली क्लास है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कैमरा उस समय रुक गया था, तो आप ये इसको कंटिन्यूटी में ही इसको रीड करें तब इसका समझ में आएगा। तो इसके बाद आप कंटिन्यू देखें। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट स्क्रीन ऑन रूल नंबर 8. Rule number 8, there is no use of article a or an with by preposition. With by preposition. रूल नंबर 7 में हमने डिफरेंस बिटवीन ए और एन का किया 6 में, और 7 में आपने मोस्ट एडवर्ब वाला। इससे नेक्स्ट रूल है 8 का, जिसके अंदर हम जीरो आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल ए एन विथ बाई प्रीपोजिशन। कहने का मतलब बाई प्रीपोजिशन का यूज होगा तो बाई प्रीपोजिशन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल या ए एन का यूज नहीं होगा। फिर हमने क्या एक्सेप्शन क्या दिया, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ में आर्टिकल का तो यूज होगा, लेकिन अदर देन बाई को छोड़ करके, बाई प्रीपोजिशन को छोड़ करके बाकी के अन्य जो प्रीपोजिशंस हैं उनके साथ में आर्टिकल का यूज होगा। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई कार। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई कार, वह यात्रा करता है, किसके साथ करता है, कार में करता है। यस, तो रूल के अकॉर्डिंग देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल
an विथ बाई, तो ये प्रीपोजिशन बाई आया और यहाँ नाउन है तो नाउन और बाई के बीच में देयर इज नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। ही वॉज ट्रेवलिंग इन ए कार, यस करेक्ट आंसर। जब हमने बाई के अलावा दूसरा प्रीपोजिशन होगा तो यहाँ किसका क्या होगा, इन ए कार, इन ए कार का यूज हुआ। थर्ड देखिए, he goes to school by taxi, he goes to school by taxi। अब जैसे ही by का प्रीपोजिशन होगा आपका ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन आपका यहां पर जब by प्रीपोजिशन होगा तो क्रॉस, जीरो आर्टिकल, और बाई के अलावा अदर प्रीपोजिशन होते हैं तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ही गोज टू स्कूल इन ए टैक्सी, इन ए टैक्सी। नेक्स्ट, शी गोज टू कॉलेज बाई बस, फिर बाई आ गया और बाई देखते ही आप क्लोज करना। एग्जाम में क्या करते हैं, एक साथ में दो सेंटेंस देंगे, कंटिन्यूटी में देंगे। सी गोज टू, या यहाँ होगा रमेश गोज टू कॉलेज बाई बस एंड दिनेश गोज टू इन ए बस। दिनेश का लगा दिया, एक महेश का लगा दिया, एक दोनों बस में जाते हैं, एक के बस के लिए प्रीपोजिशन बाई का यूज़ कर दिया, दूसरे के लिए प्रीपोजिशन अदर इन का कर दिया। तो स्टूडेंट देखेगा कि जब रमेश के साथ एन हो रहा है तो महेश के साथ भी क्रॉस आएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, शी गोज टू कॉलेज बाई, देयर इज नो प्रीपोजिशन। शी गोज टू मार्केट ऑन ए बस, शी गोज टू मार्केट ऑन ए बस, यहाँ बस आया है, ये ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन आया और यहाँ पर किसका यूज हुआ, आर्टिकल ए का। इस रूल में आप कंफ्यूज हुए होंगे कि सर जब कार टैक्सी की बात हो रही थी तो आपने बाई के अलावा इनका यूज़ किया और बस का यूज़ होते ही आपने बाई के अलावा यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ। ये हम प्रीपोजिशन वाले पार्ट में पढ़ाएंगे, वरना इसको छोड़ करके हम एक दूसरे वे चले जाएंगे। तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट जब होगा उसको आप ज़रूर देखें, उसमें ये चीज़ क्लियरिफिकेशन बिल्कुल अच्छी तरह से किया जाएगा कि कार टैक्सी, अगर जीप, कार टैक्सी जीप के लिए इनका यूज़ होगा और बस ट्रक और अदर के लिए किसका यूज़ होगा, ऑन का। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। एक बार इसका यस ये हो गया बाई बस। नेक्स्ट रूल नंबर 9, नेम ऑफ मील्स डोंट टेक एनी आर्टिकल, नेम ऑफ मील्स डोंट टेक एनी आर्टिकल। मील्स भोजन, यस भोजन, तो किसी भी भोजन के नामों से पहले, खाने की चीज़ों के भोजन के नामों से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देखिए, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट 8 AM, 8 AM पे मॉर्निंग 8 o'clock हमने क्या कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। तो क्या यहाँ आर्टिकल होगा क्या, हमने लिखा है नेम ऑफ मील्स डोंट, नहीं होता है और नहीं होता है तो यहाँ क्रॉस करो, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, शी हैड टेकन लंच, उसने खाना ले लिया था तो ले लिया था, हम क्या करें इसमें, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। फिर देखो, दे हैव टेकन डिनर, उन्होंने भी क्या कर लिया, डिनर ले लिया। अब जब डिनर ले लिया तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्यों पढ़ाया कि आर्टिकल नेम ऑफ मील्स के पास डोंट टेक होता है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। अगर किसी भी नेम ऑफ मील्स के पहले एडजेक्टिव का यूज़ होगा तो आर्टिकल 100% यूज़ होगा। आर्टिकल किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। देखिए, बट एक्सेप्शन दिया हमने, बट इफ एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नेम ऑफ मील्स, यदि भोजन से नामों से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है तो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, आर्टिकल यूज बिफोर द एडजेक्टिव। यहाँ ये द एडजेक्टिव हमने वो वाला एडजेक्टिव डेफिनेट बना रहे हैं जो भोजन से पहले वाला एडजेक्टिव होगा।
यहाँ कहीं आप आर्टिकल दे वाला नहीं माना है, हमने इसको डेफिनेट माना है कि एडजेक्टिव, कौन सा वाला एडजेक्टिव, वही वाला जो भोजन के नाम से पहले यूज होगा और उसके पहले आर्टिकल हमारा नेक्स्ट यूज़ होगा। इसके एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे दूंगा, तो यहाँ स्क्रीन फुल होगी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं अपन। यस स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस रूल्स में, प्रीवियस हमारी जो स्क्रीन थी उसमें हम बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट, मील्स की बात कर रहे थे कि मील्स में हम आई हैव टेकन ए हैवी ब्रेकफास्ट, पहले वाले एग्जाम्पल्स में हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव्स नहीं थे, तो विदाउट एडजेक्टिव जब नेम ऑफ मील्स की बात होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो वहाँ किसी तरह का कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन नेम ऑफ मील्स से पहले अगर आर्टिकल का यूज़, अगर एडजेक्टिव का यूज़ होता है तो एडजेक्टिव के पहले किसका यूज़ होगा, आर्टिकल का यूज़ होगा। तो आई हैव टेकन ए हैवी ब्रेकफास्ट, अब आर्टिकल ए का यूज़ हुआ बीइंग एडजेक्टिव, ब्रेकफास्ट इज नाउन, नाउन एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव के पहले किसका यूज़ हो रहा है, आर्टिकल का यूज़ किया। क्यों? I would like to have delicious dinner। कौन सा डिनर पसंद करते हो आप? डिलीशियस डिनर, यस। तो डिलीशियस क्या है, एडजेक्टिव, और डिलीशियस के पहले आर्टिकल किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। She has cooked delicious lunch। उसने कौन सा खाना बना चुकी, डिलीशियस, तो एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। लर्न कैसे रखोगे, स्वादिष्ट भोजन हो तो आर्टिकल और नहीं हो तो नो आर्टिकल, है ना। हाँ, तो देखो डिलीशियस, हैवी, एडजेक्टिव यूज़ किया हमने नेम ऑफ मील्स के पहले, और नेम ऑफ मील्स के पहले यदि एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल का यूज़ होगा, और नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज़ भी नहीं होगा। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल, आप ये ध्यान रखें, एडजेक्टिव है तो आर्टिकल भी है, एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। फिर देखिए हेडेक, ये जो हेडेक है, नेम ऑफ मील्स हैं, ईडियम्स हैं, ये कुछ इस तरह से टॉपिक्स लिए हैं हमने जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एग्ज़ाम में एक लोअर लेवल से क्वेश्चन नहीं लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल का एक होता है। तो वहाँ पे देखिए एक हेडेक वर्ड है, हेडेक वर्ड में आर्टिकल होता भी है, नहीं भी होता। कैसे नहीं होता, जब आप कहेंगे कि आई हैव ए हेडेक, तो अगर अकेला आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं आई हैव हेडेक, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। और जब आप कहते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, तो सफरिंग फ्रॉम अपने बाद में कोई आर्टिकल नहीं लेगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, और इस तरह से यूज़ आता है सफरिंग फ्रॉम, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो चेंज, देयर इज़ नो चेंज इन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, देयर इज़ नो चेंज इन इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, मतलब ईडियम्स। यू नो अबाउट द ईडियम्स, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, जैसे फ्रेजेस जैसे बन गई, प्रचलन में चल रहा है, वैसे ही उनमें आर्टिकल चलता रहेगा। आप अपने ये जो रूल्स लिखा के आप उनमें एक्सपेरिमेंट मत करने जाना कि सर ये रूल है तो हमारा ये वाला रूल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। ये मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ईडियम्स जो हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, उनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। आपके रूल्स भले ही हो, भले आप रूल करें, लेकिन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन डजंट चेंज नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, डोंट मेक ए नॉइज़, डोंट मेक ए नॉइज़, और सबसे पहले ही आपने ये यू हैव रिटन इट अबाउट दैट देयर इज अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता ही नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने कहा कि इडियम्स अगर इस तरह के आते हैं तो वहाँ ए का यूज़ होगा। आप अपना रूल फॉलो नहीं कर सकते कि सर अनकाउंटेबल है या सिंगुलर नहीं है या काउंटेबल है, जो भी है ये एडमेटिक है। ही इज़ इन ए हरी, ही इज़ इन ए हरी। अब हरी देखिए, हरी अपने पहले आर्टिकल ए लेगा। ही वाज इन ए टेम्पर, ही वाज इन ए टेम्पर, तो ही वाज इन ए टेम्पर, डोंट मेक ए नॉइज, ही इज इन ए हरी, ही वाज इन ए टेम्पर। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं, इनमें या इडियम्स में
कोई भी जो लाइन आपके फिक्स स्टेट है, फैक्ट है, वैसी है तो वो वैसी ही रहेगी, उसमें आप अपने रूल्स मिला करके उनमें कोई किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आप ये देख लीजिए, आपके ये कंप्लीट होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। अब कुछ रूल्स हमारे पास ये हैं जहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, जहाँ जिसको हम हेडिंग डालेंगे जीरो आर्टिकल्स ऑफ। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम चल रहे हैं, वहाँ पे होगा नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स। यस, नो यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। नो यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए एन एन का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होगा। अभी आपने क्या सीखा है कि कहाँ कहाँ यूज़ होगा, अब क्या सीख रहे हैं हम, कहाँ कहाँ ए एन का यूज़ नहीं होगा। तो देखिए रूल नंबर 1, नंबर ऑफ नो यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का रूल नंबर 1, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एनी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन किसी फिक्स पर्टिकुलर प्रॉपर, जैसे जयपुर है तो जयपुर हमारा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। जयपुर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान भी क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। राम इज़ गोइंग टू मार्केट। राम कौन है, प्रॉपर है, फिक्स उसका नाम है, तो प्रॉपर नाउन के पहले भी यहाँ किसका यूज नहीं होगा, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। रूल नंबर 2, देयर इज़ नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके पहले भी किसी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ए एन। मिल्क इज़ यूजफुल थिंग, तो मिल्क इज़ ए यूजफुल थिंग। मिल्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के पहले किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं होगा। गोल्ड इज़ ब्राइट। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले भी किसी तरह का कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। रूल नंबर 3, ए एन का यूज़ नहीं होता। रूल नंबर 3, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के पहले ए एन का पॉसिबल ही नहीं है। देयर आर ए चेयर्स, रॉन्ग। आप बुक्स कर रहे हैं, प्लूरल लगा रहे हैं, तो आर कैसे होगा, ए कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा प्लूरल नाउन के पहले। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ए एन आफ्टर दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ में भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा। जनरली एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। काइंड ऑफ एन एनिमल, काइंड ऑफ एन एनिमल, एन का नहीं होगा। टाइप ऑफ ए बुक, रॉन्ग। सॉर्ट ऑफ मैंगो, तो देयर इज नो यूज ऑफ ए एन आफ्टर दीज वर्ड्स। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद में किसी तरह का कोई इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है। कुछ एक दो रूल्स और हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। आइए, यस, आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी पहले वाली स्क्रीन की, अब नई स्क्रीन पे देखिए आप। नो यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल चल रहा है अपना, जिसके अंदर रूल नंबर 4 रूल हो गए हैं। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एन बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड नाउन। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज़ नो यूज़ आर्टिकल ए एन आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। पजेसिव, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए पहले आप, हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यस, पजेसिव एडजेक्टिव देखो, पजेसिव एडजेक्टिव माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स, पजेसिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव आर नेवर यूज अलोन, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज विथ नाउन। ये हमेशा नाउन के साथ होंगे, कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव होने के कारण यहाँ ए का आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। देखिए पेन नाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव
माई है, इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं आएगा, या आप कह सकते हैं कि माई के बाद में आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। डैट इज योर बुक, डैट इज योर बुक, डैट इज योर ए बुक, नो, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दिस इज हिज ए कार, नो, यहाँ ए कार नहीं होगा। फिर देखिए, इट इज हिज ए पेन, नो, यहाँ पे नहीं होगा। योर ड्रेस इज बेटर देन माइन, योर ए ड्रेस इज बेटर देन माइन, रॉन्ग, यहाँ ए का यूज होगा ही नहीं। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का यूज नहीं किया है, आप देख लें एक बार। फिर देखें, डेट पजेसिव एडजेक्टिव योर, हिज, योर और माइन, यहाँ पे हिज एडजेक्टिव। इस सेंटेंस को देखें एक बार, योर ड्रेस इज बेटर देन माइन, योर पजेसिव है, कंपेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी पजेसिव आना चाहिए। तो या तो होगा योर ड्रेस इज बेटर देन माई ड्रेस, माई ड्रेस, और अगर आप माई ड्रेस नहीं कहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, माइन, माइन, माइन होगा ये पजेसिव प्रोनाउन। रूल नंबर 6, देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल, देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है, यस, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब इंकित करना, बताना, इशारा करना। जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मैंने मेंशन किए यहाँ पर, दिस, डैट, दीज और दोज, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, आप कहीं ऐसा ना लिखें कि दिस ए बुक इज योर्स, इसके बाद भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर देखिए, डैट कार इज हर्स, वो कार उसकी है तो हर्स, यहाँ पर डैट ए कार इज हर्स, ए नहीं होगा। देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद में भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फिर देखिए, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, ईच बॉय हैज ऑन बुक, ईच बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, नाउन क्वालिफाई, नाउन के पहले किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव कौन हुआ, ईच, ईच के बाद में आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। ईच बुक हैज़ ऑन बुक। नेक्स्ट देखिए, एवरी टीम इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड, एवरी टीम इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड, एवरी ए टीम, एवरी ए टीम इज, एवरी ए टीम इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एवरी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर देखिए, आइदर चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, देयर आर 2 चेयर्स, और उन चेयर में से कोई एक टूट गई है तो आप कहेंगे कि शायद एक चेयर को तोड़ दिया गया है, तो आप ये कहीं नहीं कहेंगे कि आइदर ए चेयर हैज़ बीन ब्रोकन, नो, यहाँ ए का यूज नहीं होगा। हमने इस सेंटेंस में एक बार देखिए, यहाँ ईच का यूज किया है, इन दिस सेंटेंस यूज ऑफ द ईच एंड इन दिस सेंटेंस यूज ऑफ एवरी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट नो अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच, जनरली ईच के बाद में आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं कि ईच बुक, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच टेबल, और एवरी के बाद में आप यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, एवरी टीम, एवरी क्लास, एवरी लाइन, इस तरह से। तो एवरी के बाद में आपकी कलेक्टिव, जनरली कलेक्टिव नाउन का यूज़ होगा, और ईच के बाद में सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज़ होता है। तो ये आपके थे। अगला स्क्रीन पे हम चल रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल पढ़ने से पहले एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जब तक हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपने उसके स्क्रीनशॉट ले ली होगी, और अब देखिए, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। इफ नाउन इज पर्टिकुलर,
if noun is particular or definite or identified it means article the is used before the noun. यदि noun identified है, definite है, particular है, तो उसके पहले article the का यूज होगा. Now even if the noun may be countable or material or abstract or proper noun, चाहे वो noun countable हो, चाहे material हो, चाहे abstract हो और चाहे proper हो, कुछ भी कैसा भी नाउन हो सकता है, लेकिन यदि वो नाउन आइडेंटिफाई है, डेफिनेट है और पर्टिकुलर है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा ही होगा, मस्ट. अब कैसे होगा हम एक बार देखते हैं. देखिए एग्जाम्पल्स. गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती मेटल है. फिर देखिए वाटर इज यूजफुल फॉर अस, काउज आर मूविंग हियर एंड देयर, भीम इज ए गुड बॉय, भीम इज ए गुड बॉय और भीम इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, कुछ भी कह सकते हो. तो गोल्ड मटेरियल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, काउज काउंटेबल नाउन है और भीम प्रॉपर नाउन है. हमने एग्जाम्पल हर नाउन से लिया है. क्या यहां आर्टिकल दे का यूज होगा? In 4 sentences में there is no use, in these 4 sentences there is no use of article the. इनमें आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा क्योंकि गोल्ड प्रेशियस है, कोई डेफिनेट आइडेंटिफाई की बात नहीं कर रहा. वाटर यूजफुल है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा. काउज मूविंग हियर एंड देयर आप देखते हैं. भीम अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पे इन सब में आर्टिकल दे का यूज नहीं होगा. क्रॉस. फिर आप देखिए कि कहाँ यूज होगा. कंपेयर दीज सेंटेंसेज विथ फॉलोइंग सेंटेंस. मैंने क्या किया आप देखिए, ये गोल्ड है, ये गोल्ड, वाटर वाटर, काउज काउज, भीम और भीम. सेम नाउन्स मैंने रिपीट किए हैं. क्या यहाँ आर्टिकल दे का यूज होगा? देखिए गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज ब्राइट. ब्राइट सोना कौन सा है? अफ्रीका वाला ब्राइट है. तो आप यहाँ क्या करेंगे? आर्टिकल द. केवल हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि केवल अफ्रीका वाली गोल्ड की बात हो रही है, किसी दूसरी गोल्ड की बात नहीं हो रही. फिर देखिए वाटर ऑफ सांबर इज सॉल्टी, वाटर ऑफ सांबर इज साल्टी. वाटर एक जर्नल और वाटर की बात, आपके घर वाले पानी की या मेरे पानी की या किसी और के जिसके पास बॉटल में पानी हो, उस पानी की बात, इस पानी की बात नहीं हो रही है. हम बात करते हैं केवल सांबर वाले पानी की बात कर रहे हैं. और सांबर वाले पानी की बात करने से हम ये होगा कि ये केवल और केवल आइडेंटिफाई हो गया, क्वालिफाई हो कर दिया हमने इसको और पर्टिकुलर बना दिया कि केवल और केवल सांबर की बात है, इसलिए यहाँ किसका यूज होगा? आर्टिकल दे का यूज होगा. फिर देखिए काउज ऑफ हरियाणा आर बेटर देन योर्स. जो हरियाणा की गायें हैं वो तुम्हारे पास जो गायें हैं उनसे ज़्यादा अच्छी गायें रखती है. तो हमने पर्टिकुलर एक गाय को फिक्स कर दिया कि केवल हरियाणा वाली गायें ही अच्छी है तुम्हारी वाली गायों से. तो हरियाणा वाली गाय, इसको काउज को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है हरियाणा से, वाटर को रिस्ट्रिक्ट किया है सांबर से, गोल्ड को रिस्ट्रिक्ट किया अफ्रीका से. अब तो यहाँ काउज के पहले भी किसका यूज़ होगा? आर्टिकल दे का यूज़ होगा. फिर देखिए भीम ऑफ महाभारत इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. भीम इज़ महाभारत. कौन से वाले भीम की बात हो रही है? महाभारत वाले भीम की बात हो रही है. एरे गेरे नथु गेरे भीम की बात नहीं हो रही है. हम बात किसकी कर रहे हैं? केवल और केवल महाभारत वाले भीम की बात करते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है. तो भीम ऑफ महाभारत इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. तो यहाँ आर्टिकल किसका यूज होगा? द का यूज होगा. दीज 4 सेंटेंस यहाँ आर्टिकल का यूज होगा होगा होगा. इनमें नहीं होगा नहीं होगा. लेकिन क्वालिटी बात आप ये समझ गए होंगे कि सेम नाउन्स ये थे, सेम नाउन्स ये है. इन नाउन्स में भी सब अलग अलग है. मटेरियल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है और प्रॉपर है. इन सब नाउन्स में यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ द नहीं हुआ, लेकिन इन सब नाउन्स में यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का द का यूज़ हुआ है. क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कर दिया कि आप इसका कंपेयर करें और देखें कि क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ. इसका आप देखें और लर्न को, इस रूल्स को, जो मेरे पढ़ाए हुए रूल्स हैं, इनको आप लर्न करें, समझें. जनरली यूट्यूब्स पे आप जब इसको देखेंगे या
तो और जो अदर टीचर्स हैं वो कहेंगे कि इसे आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इसको लाइक करना। मैं सब्सक्राइब लाइक की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे रूल्स ऑथेंटिक हैं, प्रमाणित हैं और इनमें गलती होने की चांसेस न के बराबर है। तो आप इन चीज़ को लर्न ज़रूर करें और कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपके किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़फुल रहेगी। तो एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट हम चलते हैं आगे डेफिनेट आर्टिकल की आगे बात को बढ़ाते हैं। यस स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे कि यूज़ ऑफ डेफिनेट क्या क्या। डेफिनेट आर्टिकल पहले वाली स्क्रीन पे आपने देखा था कि कौन कौन से अपन डेफिनेट नाउन थे हमारे, कि किस किस तरह से गोल्ड, वाटर, काऊ, किस तरह से। अब हम किस तरह से हम कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कौन से नाउन को कैसे डेफिनेट बना सकते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। We can classify of definite article. We can classify the definite article the according following points. We can classify of definite articles. Definite article को हम किस तरह से अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में हमने अकॉर्डिंग किया। अकॉर्डिंग फॉलोइंग पॉइंट्स, अकॉर्डिंग फॉलोइंग पॉइंट्स में हमने किया। एक डेफिनेट आर्टिकल हम बनाएंगे एनाफोरिक यूज ऑफ द, सेकंड कैटाफोरिक यूज ऑफ द, थर्ड होमोफोरिक यूज ऑफ द, और फोर्थ होगा स्पेशल यूज ऑफ द, और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट होगा जेनेरिक यूज ऑफ द। तो इस तरह से हम एनाफोरिक यूज ऑफ द, कैटाफोरिक यूज ऑफ द, होमोफोरिक यूज ऑफ द, स्पेशल यूज ऑफ द और जेनेरिक यूज ऑफ द से हम इस चीज़ को समझेंगे आगे। फर्स्ट देखिए एनाफोरिक यूज ऑफ द। एनाफोरिक यूज में क्या होता है, एनाफोरिक यूज में सबसे पहली बार किसी नाउन को हमको इंडेफिनेट होता है और उसे बाद में उसे डेफिनेट बनाते हैं। सबसे पहले हम उसे इंडेफिनेट डिक्लेरेशन देते हैं। जिस तरह से देखिए, देयर वाज ए मैन, एक बार एक व्यक्ति था, आदमी था, मैन। यहाँ किसका यूज हुआ, आर्टिकल ए का यूज हुआ। अब जब भी इस आर्टिकल, इस ऐसे में नेक्स्ट टाइम मैन का यूज होगा, आर्टिकल द लेगा, क्योंकि हमने बता दिया कि अब जो भी हम बात करेंगे अबाउट टॉकिंग ओनली द पर्सन, उसी आदमी की बात करेंगे। तो देयर वाज ए मैन, द मैन, जैसे ही ये मैन नेक्स्ट टाइम रिपीट होता है, आर्टिकल किसका यूज हुआ, द। द मैन हैड 4 sons, द मैन हैड 4 sons, द मैन लिव्ड इन ए हाउस। अगेन देखिए नाउन कौन सा यूज हुआ, हाउस, और हाउस के पहले आर्टिकल किसका यूज हुआ, क्योंकि हाउस कौन से टाइम पे यूज हुआ है, फर्स्ट टाइम पे यूज हुआ है, और फर्स्ट टाइम पे यूज होने पे आर्टिकल ए का यूज होगा। और जब यही हाउस सेकंड टाइम यूज होगा इन दिस ऐसे, तो फिर किसका यूज होगा, डेफिनेट होगा और द होगा। द हाउस, देखो नेक्स्ट टाइम पे यही नाउन सेकंड टाइम पे यूज हुआ और आर्टिकल द का यूज हुआ। द हाउस वाज वेरी बिग, द मैन, इस यही आदमी आ गया। द मैन डिड वेरी हार्ड वर्क, डिड डू की सेकंड फॉर्म, वह आदमी कठिन परिश्रम करता था। द मैन डिड वेरी हार्ड वर्क, द मैन हैड ए बैग। फिर बैग देखिए, बैग कौन से टाइम पर आया, फर्स्ट टाइम पर आया। फर्स्ट टाइम पे आर्टिकल किसका यूज होगा, इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज होगा। अगर वॉवल साउंड होता तो एन का यूज होता था, इंडेफिनेट। फिर द बैग, यही बैग सेकंड टाइम पे रिपीट हुआ है और सेकंड टाइम पे रिपीट होने पे ये बैग डेफिनेट हो गया और डेफिनेट से पहले आर्टिकल किसका यूज हुआ, द का यूज हुआ। तो द बैग, ए बैग, the house was very big, the man did very hard work, and the man had a bag, full stop, the bag was full of money, और वो पूरा बैग किससे भरा हुआ था, धन का भरा हुआ था। कौन सा वाला बैग, जो उस आदमी के पास था। ठीक है, इसी को देखो, द नाउन विच इज़ यूज्ड एट फर्स्ट टाइम, जो नाउन फर्स्ट टाइम यूज होता है, डेट टेक्स आर्टिकल ए और एन। क्लियर, समझ में आ गया। जो फर्स्ट टाइम आर्टिकल, जो फर्स्ट टाइम नाउन यूज होता है कहीं पर भी, तो वो इंडेफिनेट होता है और उसे आर्टिकल ए एन का यूज। एंड द नाउन, और वही द नाउन किया है हमने, द नाउन का मतलब वही वाला नाउन। द नाउन इज यूज्ड एट सेकेंड टाइम, अगर वही वाला नाउन सेकेंड टाइम पे रिपीट होता है तो इट टेक्स आर्टिकल द। ये कौन सा आर्टिकल लेगा, द लेगा, और दिस इज कॉल्ड एनाफोरिक यूज ऑफ द। और इस यूज को ही हम क्या कहेंगे, एनाफोरिक यूज ऑफ द कहेंगे इस आर्टिकल को।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैटाफोरिक यूज ऑफ द, पहला एनाफोरिक यूज, दूसरा कैटाफोरिक यूज। कैटाफोरिक यूज एग्जांपल्स देखिए, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस क्लास इज माय फ्रेंड। द बॉय, यानी कि इस कैटाफोरिक यूज में सबसे पहली बार स्टार्टिंग में ही हम नाउन को डेफिनेट बना देते हैं कि द बॉय, और उसके बाद में नेक्स्ट टाइम हम उसे डिफाइन करते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहली बार हम उसको डेफिनेट बनाते हैं और नेक्स्ट टाइम उसे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में ही हमने इस नाउन को बॉय को आर्टिकल दे का यूज किया, और आर्टिकल दे का यूज करके हमने इसे डेफिनेट बना दिया। कहने का मतलब जब इस सेंटेंस में हमारी बात होगी वो किसके बारे में होगी, द बॉय की। तो द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, जो लड़का क्लास के कॉर्नर में बैठा हुआ है, इन दिस क्लास इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। मेरा फ्रेंड कौन है, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस क्लास, द बॉय। तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया कि हम जो आगे कॉर्नर क्लास में बात कर रहे हैं उस लड़के की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए द बॉयज इन द हॉल, द बॉय है यहाँ पे, द बॉय इन द हॉल इज माई स्टूडेंट। द बॉय सिटिंग इन द हॉल, यहाँ सिटिंग है, द बॉय सिटिंग इन द हॉल, द बॉय सिटिंग इन द हॉल, सिटिंग इन द हॉल इज माई स्टूडेंट, इज माई स्टूडेंट। ये विदाउट सिटिंग भी हम कह सकते हैं कि जो लड़का हॉल में है या जो लड़का हॉल में बैठा हुआ है, तो विदाउट सिटिंग कर लो। बोथ फ्रेजेस आर करेक्ट, आप कंफ्यूज नहीं हो। द बॉय सिटिंग इन द हॉल, जो लड़का हॉल में बैठा हुआ है, द बॉय इन द हॉल, जो लड़का हॉल में है, तो ठीक है। तो द बॉय इन द हॉल इज माई स्टूडेंट, इस हॉल में जो बैठा हुआ लड़का वो मेरा स्टूडेंट है। अब हमने यहाँ पे इसको एक नाउन फ्रेज समझाने की कोशिश की है कि इस वर्ब के पहले जो भी है वो नाउन फ्रेज होगा, और नाउन फ्रेज में हमने 3 पार्ट किए हैं। द प्री मॉडिफायर है, बॉय, जो बॉय है ये हेड वर्ड है, इन द हॉल इन यूज हुआ है, ये पोस्ट मॉडिफायर है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, ये इतना सा प्रीपोजिशन फ्रेज, और ये पूरा का पूरा फ्रेज कहलाएगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज होगा। फ्रेज के बारे में आपने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा है। आगे जब हम क्लोज में जाएंगे तो क्लोजेज में और भी अच्छे फ्रेजेज आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो इस कैटाफोरिक यूज़ में फर्स्ट टाइम हम नाउन को आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे और उसे बाद में डिफाइन करते हैं, इसे कहते हैं कैटाफोरिक यूज़ ऑफ द। थर्ड देखिए होमोफोरिक यूज़ ऑफ द। होमोफोरिक यूज़ ऑफ द, होमोफोरिक यूज़ ऑफ द, दैट नाउन इज अंडरस्टूड ऑटोमेटिकली, द नाउन अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। जो स्वतः ही किसी बात को नाउन समझ में आ जाए वो नाउन कौन सी कैटेगरी में यूज़, वो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में आता है, और वो कौन से कैटेगरी में होता है, होमोफोरिक यूज़ ऑफ द। द नाउन हमने लिखा द नाउन आइडेंटिफाइड ऑटोमेटिकली, जो आइडेंटिफाइड हो जाए, कैसे हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, ऑटोमेटिकली उस नाउन को कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी कहूँ कि स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, आप यहाँ से उठेंगे और जाकर के 2 घर छोड़ करके पड़ोस के मकान में क्या फ़ैन बंद करके आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपने समझ लिया, मैंने ये कहा कि स्विच ऑफ द फैन, इट मीन्स आप इसी वाले फ़ैन को बंद करना है, यानी कि एक सेल्फ अंडरस्टूड है। आपको मैं कहूँ कि कम हियर एंड राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आप आकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखना। अब कौन से वाले ब्लैक बोर्ड पर आप लिखोगे? 3 क्लास छोड़ के जो सर पढ़ा रहे हैं उनके, या इस पे? इस पे। क्या किसने कहा कि इस पे लिखना है? कि सेल्फ अंडरस्टूड। किसने बताया कि यही फ़ैन बंद करना है? सेल्फ अंडरस्टूड। मैं आपको कहूँ, पीछे वाले स्टूडेंट से आपको कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, कौन सा डोर बंद करोगे? ये वाला डोर बंद करोगे। आपको कहूँगा ओपन द विंडो, कौन सी वाली विंडो खोलोगे? ये वाली विंडो। तो जो सेल्फ अंडरस्टूड होते हैं उनमें भी हम द का यूज़ करते हैं। देखो, ओपन द डोर, डोर के पहले दे का यूज़ हुआ। क्लोज द डोर, फिर दे का यूज़ हुआ। राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर दे का यूज़ हुआ। तो ये जो दे का यूज़ कर रहे हैं हम, ये किसी नाउन के पहले कर रहे हैं। एनाफोरिक में हमने क्या किया था? पहले इस आइडेंटिफाइड किया था कि एक, हमने पहले डिक्लेरेशन दिया था कि एक बार एक व्यक्ति था। अब उसके बाद में जब भी करेंगे वो आदमी क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा। क्या कहा हमने? वंस अपॉन देयर वाज ए लॉइन, और उसके बाद कहेंगे द लॉइन, तो वो डेफिनेट हो जाता है। पहली बार हमने उसे
डिफाइन किया और बाद में उसे डेफिनेट बनाया। कैटाफोरिक यूज़ में क्या होगा, सबसे पहले हमने उसे डेफिनेट बनाया और डिफाइन बाद में किया। और होमोफोरिक यूज़ में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, इसलिए ऑटोमेटिक ही डिफाइन है, ना तो हमने प्री किया ना पोस्ट किया, ये ऑटोमेटिक ही डिफाइन हो रहा है कि आपको कौन सा यूज़ किया। तो हमने एनाफोरिक यूज़ समझ में आया। एनाफोरिक यूज़ पहले डिफाइन और बाद में डेफिनेट। कैटाफोरिक यूज़ में पहले डेफिनेट बाद में डिफाइन। और होमोफोरिक में सेल्फ अंडरस्टूड है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में स्पेशल यूजेज ऑफ द एंड जेनरिक यूज़ ऑफ द होगा, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से एक बार से।